Hello friends, I am Poonam Baduja, Senior Faculty Chemistry in the VMC. Right, this is our fourth lecture of the acid bases and the salt. Although we covered all the topics of the acid bases and salt, still I am discussing the Pearson book with you guys so that you can correlate the topics, previous topics with your textbook, and you can do the questions in the book very easily, right? So we are again starting with the acid bases and salts. Here is the acid. What do you mean by acid? I have already discussed with you guys ki acid, what do you mean by acid, bases and salts, and what are their applications and what are their uses and how they are formed and their reactions already discussed. Still we are discussing with your textbook, right? So be focused and do whatever I said in the whole video, ki all the questions and in-text questions and workbook and everything, right? Now we are starting with the what do you mean by acid. If you have uh, tasted the curd, how it look, how it tastes in your mouth, it is basically sour in taste, right? So acids are those substances which are sour in taste, right? I'm just using the highlighter to indicate that all the things what I said in the previous lecture you can correlate in this with your textbook. This is sour, they contain the acid, they contain that as substances, that substance is known as the acid. The word acid is coming from the Latin word that is acidus, which means sour, कि खट्टा जिसका मतलब है, लैटिन में इसका मतलब क्या होता है, खट्टा, तो वहीं से एसिड का नाम आया है. दिस इज नोन एज द acid, right? Now types of acid I am discussing about. The I have discussed this types of acid. This is a natural acid, organic acid, and the weak acids, and the strong acid, inorganic acid, mineral acids is there. Okay, just hold a second. This is a mineral acid. This is the mineral acid. Okay, the acid can be classified into different types according to the sources. This is natural and artificial acids. Natural, which is obtained from the natural source like plant and animals, like oxalic acid is present in the tomato, and acetic acid is present in vinegar, and citric acid is present in lemon, oranges, citrus food, right? Citrus fruits. Organic acids are those acids which are biodegradable and they are obtained from the natural sources, and they are the weak acids and they are non-corrosive in nature, and they have mainly the content of the carbon and hydrogen, right? This is a, they contain the carbon and hydrogen. The acids which are prepared synthetically are known as the artificial acids, and these acids are hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. These are the mineral acids also, because they are obtained from the rock and salts, and they are very strong acid hai, so they are corrosive in nature and they are harmful. When they fall on your hand, it will cause burn and irritation on your skin. They are inorganic acids. They are inorganic acid. Inorganic means they are obtained from the rock and salt, and the minerals obtained from the minerals here are known as the mineral acids. These acids contain one hydrogen, at least one hydrogen, but no carbon, and atom. And minerals acids are commonly used in the chemical laboratories. Mineral acids are commonly used in your chemical laboratories, right? Once the lockdown is over, we'll go to the lab and we'll see the all the acid and the bases in our laboratory, right? Now here is the one more classification of the acid, that is the dilute acid and the concentrated acid, right? That is the dilute acid and what happened, dilute acid and concentrated acid.
Dilute acid and the concentrated acid. A dilute acid is an acid which has the low concentration of the acid but more concentration of water. Example, hydrochloric acid is consists of the hydrogen chloride dissolved in small quantity of water, which is known as the small okay, this is an example of concentrated acid where the most high concentration of the hydrochloric acid is dissolved in the low concentration of the water, right? High, more is the acid, less is the water. Concentrated, more is the water, less is the acid, is your dilute solution, right? We can conclude the acid concentrated and dilute depending upon the amount of the water present in it. Okay. Yeah, more if I talk about this thing, if I talk about, here is the water, here is the acid. If this is more, this is less, right? This is dilute. If this is less, this is more, this is known as the concentrated, right? This is the water, quantity of the water deciding my dilute and the concentrated acid, right? Understood, guys? Now, we are proceeding the properties of the solid. An acid is a chemical substance though whose aqueous solution have a sour taste, right? Obviously, बात है, you have tasted the curd, you have tasted the oranges and lemon. They are all have the sour taste. ठीक है? It turns the litmus. It turns blue litmus to red. If a substance is an acid, it will turn the blue litmus into red, is known as the acid. Phenolphthalein is a synthetic indicator in which the solution will remain colorless. This is, I have shown the picture where acid will remain colorless. Phenolphthalein is colorless. In acid, no change, but in the base, it is an pinkish color. ठीक है? In acid, no change on the phenolphthalein color because it is a colorless substance, and again in acid it is a colorless, as all acid conduct electricity in solution state, right? Acid is an acid until and unless water is there, otherwise it is not an acid. Acids are those substances, right, which conduct electricity in solution state, is the important thing. They are corrosive in nature, they damage the surface and which they come in contact. Strong acid destroy organic matter like paper, clothes, wood. If you put the if you put the acid on the paper, तो paper जल जाता है, right? If you put the acid on your palm, तो palm में भी क्या होता है बेटा, skin जो होती है ना वो burn हो जाती है and तुम लोग irritation feel करने लग जाओगे if acid will fall, right? और वो जो सेल्स होते हैं वो सारे के सारे वहां पे पर्टिकुलर एरिया के सेल्स वो डेड हो जाते हैं, राइट? They can't be stored in metal container. Why they can't be stored in the metal container? Because they are highly reactive and highly corrosive. If they are stored in that particular container, they will corrode the metal. Corrode का मतलब है उसमें जंग लगा देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि वो मेटल भी खराब हो जाएगा, मेरा एसिड भी खराब हो जाएगा. अब उसको स्टोर करा किस में जाए? आइदर उसको ग्लासेस में स्टोर किया जाए या फिर प्लास्टिक कंटेनर में यूज किया जाए. अब प्लास्टिक जो यहाँ पे होता है एक पर्टिकुलर एसिड के लिए प्लास्टिक में यूज कर सकती हूँ, बट मोस्टली ऑल द एसिड्स आर स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर. ओके, मिनरल एसिड्स आर द कॉस्टिक. कॉस्टिक का मतलब क्या होता है? सॉल्ट मेकिंग, राइट? Salt making or corrosive in nature they are, right? If burns on the skin, they need to be handled very carefully if because they burn your screen. They are soluble in water. Acids are soluble in water. Strong acid mixed with water, heat is produced. अभी हम लोग जब लैब में एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा, अगर एसिड में बेटा आप पानी डालोगे तो व्हाट विल हैपन, बहुत सारे बबल्स आएंगे और रिएक्शन एक्सप्लोसिव होगी, दैट इज बेसिकली द धमाकेदार होगी. एंड द डाइल्यूट एसिड इज एडेड टू द वाटर, नो एक्सप्लोसिव रिएक्शन टेक प्लेस, नेवर एड. और दूसरी चीज ये होता है, कभी भी एसिड में पानी नहीं डाला जाता है. पानी में आप एसिड डाल सकते हो टू मिनिमाइज द रिएक्शन एक्सप्लोजन,
एंड फॉर योर सेफ्टी पानी में एसिड डालो, एसिड में पानी नहीं डाला जाता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू बिकॉज पानी देखो, पानी वैसे ही न्यूट्रल है, उसके अंदर आप धीरे धीरे एसिड डालोगे तो रिएक्शन थोड़ी थोड़ी हीट जो रिलीज हो रही है वो कम होगी, बट आप एसिड में अगर पानी डाल दोगे तो एकदम से बम्प आउट करके एसिड विल कैन फॉल ऑन योर फेस ऑल्सो, राइट। दे रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल्स, hydrogen atom present in the acid are placed by this is replaced by the metal. When the acid react with the metal, it will form the hydrogen gases evolved, right? This thing we will discuss in the later slides also. Now here is the where see, metal is the aluminium, here is the acid, this will form a salt and hydrogen gases get released where aluminium plus hydrochloric acid will form aluminium chloride and hydrogen gases form. यहाँ से आपको एक चीज पता चलती है, जब मेरा एसिड बेटा किसी भी मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा तो मुझे क्या मिलेगी, एक तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी और दूसरी चीज मुझे क्या मिलेगी बेटा, सॉल्ट मिलेगा। इतना आपको ध्यान में रखना है, right? But less reactive metals such as copper, silver, gold do not react with acids because they can't replace the hydrogen, right? Why? Because they are the low reactive metal, तो उनके पास इतनी तो पावर होती नहीं है कि वो एसिड में से हाइड्रोजन निकाल दे। एसिड में हाइड्रोजन आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखो, ये रहा हाइड्रोजन, राइट। Similarly, the example यहाँ पे आपको दे रखा है iron plus H2SO4, it will form the iron sulfate salt and this hydrogen will get evolved over here, right? Now uses of acids. Acids are present naturally in many items, right? Vitamin C is also known as citric acid, is also known as ascorbic acid. Please make sure कि आपको terminologies clear हो for your higher classes also. तो विटामिन सी के तीन नाम हो गए, क्या क्या हो गए, एक सिट्रस एसिड हो गया, दूसरा ascorbic acid हो गया, ठीक है। अब this acids are present in the natural food items. Vitamin C is essential for the body. Vitamin C हमारे दांतों के लिए बहुत जरूरी है, right? Ascorbic acid and this and vinegar, which is a solution of acetic acid in water, is used as food preservative to enhance the flavor of the food. विनेगर हम लोग कहाँ पे, अगर आपने अभी अभी नाम सुना है तो बेटा आपने इसकी बनी हुई चीजें भी खाई होंगी। आपने चाउमीन खाई है, चाउमीन में जो मेनली जो कंटेंट आता है खट्टापन इज बेसिकली ड्यू टू द विनेगर, दैट इज द एसिटिक एसिड। विनेगर का दूसरा नाम आ गया एसिटिक एसिड इन द केमिस्ट्री, राइट। एसिटिक एसिड इज used in the manufacture of the ink, textile printing, dyes and photographic chemicals, pesticides, फार्मास्यूटिकल, रबड़, प्लास्टिक, इन सब के लिए एसिटिक एसिड बहुत ज्यादा काम आता है। गैस्ट्रिक जूसेस इन आवर स्टमक कंटेन्स HCl दैट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड। अब ये सारी चीजें मेरी हो रही थी बेटा, अब देखिए ये सारी चीजें मैं अभी तक किसके बारे में बात कर रही थी, एसिटिक एसिड के बारे में। अब बात करते हैं दूसरे एसिड की। दूसरा एसिड में मेरे पास अभी क्या है बेटा, HCl की बात करते हैं। HCl तुम्हारे पेट में ही ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसका pH अराउंड 1 होता है, राइट। बहुत ज्यादा पावरफुल pH का ये तुम्हारा एसिड अपने स्टमक में प्रोड्यूस होता है। उसका काम क्या है, जो हम लोगों ने अभी खाना खाया उसे ब्रेक डाउन करना, उसे डाइजेस्ट कर देना, राइट। मिनरल एसिड हैव द मेनी uses. Sulfuric acid, the most commonly used acid in the laboratory is your sulfuric acid. It is also used for making the drugs, detergents, explosive, plastic, chemical like copper sulfate. It is also used in preparing fertilizers like ammonium sulfate. Fertilizer का मतलब है, अब in the past और एशियन टाइम्स वी आर यूजिंग द मैन्योर, मतलब गाय भैंसों का जो गोबर आता था उसे हम लोग यूज किया करते थे मैन्योर के रूप में, राइट। नाउअडेज की बहुत ज्यादा इनहांस हो चुकी है अपनी इंडस्ट्री, तो हम लोग वो खाद ना यूज करके जल्दी सॉइल को फर्टिलाइज करने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करते हैं जो कि केमिकली मेड है, लाइक अमोनियम सल्फेट हम लोग यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द कार्स, इन्वर्टर बैटरीज ऑल्सो यूज होती है, जो इन्वर्टर की बैटरीज होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है।
ऑल्सो यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री है एंड लेदर एंड द पेपर इंडस्ट्री है, राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड टू क्लीन बॉयलर्स and in purification of the salt and manufacture of the chemicals like ferric chloride. इनकी मैन्युफैक्चर में भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, राइट। इट इज यूज्ड इन द ऑयल इंडस्ट्री टू डिसॉल्व ऑयल बियरिंग रॉक्स, जो कि हमारे ऑयल बियरिंग रॉक्स होती है उनको डिसॉल्व करने के लिए सल्फ्यूर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ क्लीनिंग लिक्विड, कि मान लो कहीं पे गंदगी है तो उसके लिए भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, इफ आई टॉक अबाउट, तो नाइट्रिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। इट इज यूज्ड इन द फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर अगेन मैन मेड मैन्योर जो होता है उसे फर्टिलाइजर कहा जाता है, ठीक है। ये लेबोरेटरीज में प्रिपेयर होता है विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स एंड द एसिड्स such as ammonium nitrate is used as a fertilizer, जो कि नाइट्रिक एसिड से बनाया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द एक्सप्लोजिव्स, जो बम धमाके होते हैं ना, ये सारे के सारे भी तुम्हारे अमोनिया से नाइट्रिक एसिड से ही बनते हैं। दैट इज बेसिकली वन ऑफ द एग्जांपल इज ओवर हियर इज द TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन is the one of the compound which is used as an explosive, right। Next is your RDX, research development explosive. It is also used in the extraction of the precious metal like the silver, gold, इन सब के लिए भी यूज होता है। सारे के सारे मेटल मोस्टली डिसॉल्व हो जाते हैं एसिड्स में, पावरफुल एसिड्स में, बट द गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम ऐसे मेटल्स है जो कि इनर्ट है, विच डू नॉट डिसॉल्व इन एनीथिंग, any of the acid or any substance in the world. So उनके लिए भी एक solution ऐसा प्रिपेयर किया जाता है कि वो उसमें डिसॉल्व हो जाए। That is known as the aqua regia. aqua regia का मतलब है इसके अंदर मेरे पास HCl है बेटा और HNO3 है, HNO3 है, राइट। HNO3 है। अगर मैं बात करती हूँ HCl का, इसमें मात्रा है 3 और इसमें मात्रा है HNO3 की 1। दिस इज नोन एज द एक्वा रिजिया। इस सोल्यूशन के अंदर में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है, राइट। राइट नाउ सम कॉमन एसिड्स एंड देयर सोर्सेज। फॉर्मिक एसिड, बेटा आपको ये याद रखने हैं कि कौन सा एसिड किसमें प्रेजेंट होता है एंड उसके सोर्सेज क्या है। फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन द आंट एंड इसका सोर्स एप्पल भी है एंड इसमें एसिड क्या है, सॉरी, फॉर्मिक एसिड इज सोर्स इज द रेड आंट्स में प्रेजेंट होता है, बैलिक एसिड एप्पल्स में प्रेजेंट होता है एंड सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंजेस, लेमन एंड tartaric acid is present in the tamarind, grapes, unripe mango means खट्टी चीजों में, स्पेशली लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन द कर्ड, जैसे कि तुम्हारे दही। अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, उनमें अमीनो एसिड्स है। और आप कह सकते हो सीरियल्स जो कि दालें हैं उन सब में भी प्रोटीन्स होता है, तो उसके अंदर जो एसिड है वो अमीनो एसिड है। एंड ऑक्सैलिक एसिड इज स्पिनिश एंड टमाटोज, कार्बोक्सिलिक एसिड इज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ओके, दिस इज द कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन द कार्बोनेटिक ड्रिंक्स, मतलब कि तुम्हारी पेप्सी, कोको कोला में कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज H2CO3, right। ascorbic acid is vitamin C, that is a citrus acid, that is citrus fruits में प्रेजेंट होता है। इंडियन में अगर मैं बोलूं गूसबेरी लाइक आंवले में इसमें प्रेजेंट होता है। यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द यूरिन, राइट। नाउ बेसिस की बात करते हैं। बेसिस आपको पता है बेटा क्या होता है, बेसिस आर नॉट सॉर इन टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट, राइट। अगर आपको वैसे ही नहीं पता तो कभी कभी नहाते नहाते अगर आपके मुंह में साबुन चले गया है तो आपको पता चल जाता है उसका टेस्ट कैसा है, एकदम कड़वा कड़वा होता है। दैट इज द बेस। साबुन इज नथिंग बट बेस, राइट। Now it is bitter in taste and rubbing on the it is slippery in nature, slippery and soapy feel touch होता है, right। soapy feel touch होता है and substances are bitter, soapy and they are known as the bases and the substances are basic in nature. Types of bases same. Similarly अगर मैं acids की बात करूं,
और बेसिस की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग और वीक में मैं डिवाइड करूंगी। स्ट्रॉन्ग एसिड जो थे कि कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहे थे, वीक वो होते हैं जो कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होते। अब बेसिस में भी वही बात करूंगी, स्ट्रॉन्ग की बात करूंगी, वीक की बात करूंगी। दोज बेसिस विच डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, those bases which do not dissociate completely into ions are known as the weak bases। अब इसमें कई सारे मेरे पास एग्जांपल्स आएंगे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे के सारे एसिड्स ही करोसिव है, यहाँ पे बेसिस भी करोसिव होते हैं। इफ कॉन्सेंट्रेटेड बेस अगर कोई है एंड इफ इट विल फॉल ऑन योर स्किन, तो उसमें भी क्या होगा बेटा, तुम्हें करोसिवनेस इसमें भी लगती है, राइट, ये भी करोसिव होते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, आप लोग रीड आउट करोगे, यू विल गेट द पॉइंट। नाउ नेम, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस। स्लोपी होते हैं, सबसे पहले सोपी टच होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। अब एसिड्स वो थे जो कि ब्लू को रेड कर रहे थे, अब ये बेसिस वो है जो रेड को ब्लू करेंगे, जस्ट अपोजिट। और फिनोफ्थलीन में एसिड का कोई कलर चेंज नहीं आ रहा था, बेसिस में देखो बेटा पिंक हो गया अगेन, राइट। मैंने आपको ये पिक्चर पहले भी दिखा चुकी है। दे आर द मेटल ऑक्साइड्स है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर, कार्बोनेट्स और द metal hydrogen carbonates are also basic in nature. Bases are corrosive to the skin. Bases conduct electricity in aqueous solution. They react with the acid. They will form the salt and water, right? This is a base, sodium potassium hydroxide, which has OH negative ion. This is an acid which has H positive ion. They both react together, will form a salt, and water is formed. That is known as the neutralization reaction, where acid react with the base will form the salt and water, right? Understood the thing? The second example is with your nitric acid, where the salt is forming and the water is forming, right? Next, if I talk about this thing, many bases are insoluble and they do not dissolve in the water. They are the bases. Those who dissolved in water is known as the alkali, which we have discussed in our lectures also. Uses of bases, I am focusing about the uses of bases में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज पढ़ते हैं बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप यूज पढ़ोगे तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप्स, detergents, paper industry, and textile medicines and the lab reagent. This is sodium hydroxide is nothing but the NaOH. You have to remember the formula of the NaOH, और NaOH हमारे laboratory का बहुत important एक reagent है, right? Ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide is also used in the stain remover to clean the household articles, manufacturing of fertilizers, ammonium nitrate in the manufacture of the nylon. Nylon आपने देखा ही होगा, nylon के कपड़े, nylon, plastic and dyes, right? इस सब में अमोनियम नाइट्रेट यूज होता है। स्टेन रिमूवर का मतलब है जैसे कोलिन में यूज कर लो, राइट? जनरल हाउस आर्टिकल्स को क्लीन करना है तो उसमें यूज कर लेते हैं, राइट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, इज ऑल्सो नोन एज द स्लेक्ड लाइम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का बेटा होल ट्वाइस, दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज स्लेक्ड लाइम, राइट? इट इज यूज्ड इन द व्हाइट वॉशिंग, मतलब सफेदी करने के लिए काम आता है। अगर तुमने देखा होगा पुराने नानी नाना के घर में तो प्रॉपर घर नहीं होते थे, जो मिट्टी का जो या फिर सीमेंट का जो घर होता था उसके ऊपर पुताई कर देते थे वो लोग। आप देखोगे तो पुताई हो जाती थी। नाउअडेज डिस्टेम्पर्स आर यूज्ड, पर प्रीवियसली इसे व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता था, राइट? मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट्स। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने के लिए, किसी भी कप सब्सटेंस को ब्लीच करने के लिए। एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ द सॉल्ट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी मान लो एसिड हमारी एसिडिक हो गई है तो उसको न्यूट्रलाइज, एसिड को ऑब्वियस सी बात है बेस न्यूट्रलाइज करेगा, तो सॉइल तो इतनी ज्यादा एसिडिक होगी नहीं, वीक एसिड होगा तो उसको वीक बेस चाहिए, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैं यूज कर सकती हूँ उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, राइट? नेक्स्ट, इट इज यूज्ड as an important constituent in many agricultural pesticide. It is also used for treating acidic wastewater from factories to reduce
इट्स इल इफेक्ट ऑफ द ऑन द एक्वेटिक लाइफ, राइट। जब मेरे मान लो फैक्ट्रीज में से गंदगी जा रही है या गंदा धुआं पानी जा रहा है, तो उस पानी में एसिड्स बहुत सारा होगा या फिर बहुत सारे केमिकल होंगे, उस केमिकल से इसे ट्रीट किया जाता है सो दैट कि वो पानी क्लीन होके पानी में जाए, जो भी वाटर बॉडी है उसमें जाए, सो दैट कि वो किसी को हार्म ना करे, लाइक एक्वेटिक लाइफ को कुछ हार्म ना करे, राइट। नेक्स्ट इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो आपकी कभी कभी देखा जाए तो रोज की जिंदगी में काम आ रहा है, जैसे इसे एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम बोलते हैं कि ये इनो भी है और डाइजीन भी है। अगर तुम्हारे पेट में, अगर तुम मान लो शादी में गए, ठूस ठूस के आप लोगों ने अगर खा लिया है, तो उसे रिमूव करने के लिए तो तुम्हारे पेट में बेटा एसिडिटी हो जाती है, ऐसा बोला जाता है कि एसिडिटी हो गई है। अब वो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, इनो पीती हूँ या डाइजीन पीती हूँ। दैट इज बेसिकली एसिड जो एक्सेस में प्रोड्यूस हुआ है उसे न्यूट्रलाइज कर दो विद द हेल्प ऑफ द बेस, राइट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, right? Antacid used to neutralize acidity in our stomach because of the excessive secretion of the hydrochloric acid। और वो किसके लिए हो रहा है, अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा उसे डाइजेस्ट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉमनली ये आप मैंने पढ़ा ही दिया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं कि वेयर इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। potassium hydroxide is commonly called as the caustic potash, that is basically nothing but KOH, right? It is used in the preparation of the biodiesel. It is the constituents in the production of the disinfectant and the liquid soaps, lotions, drain cleaner, इसके लिए भी यूज होता है, शैम्पूज में यूज होता है, लोशंस में यूज होता है। सम इम्पॉर्टेंट बेसिस एंड देयर सोर्सेस यहाँ पे और लिखे हुए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर है, लाइम वाटर मैंने आपको बता दिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो और ग्लास क्लीनिंग में यूज होता है, जैसे आप लोग कोलिन यूज करते हो घर में, उसके लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपके सोप में यूज हो रहा है और डिटर्जेंट्स में यूज हो रहा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में यूज हो रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, अब इसमें से मैं एक चीज पढ़ाऊंगी, बाकी आपको खुद ही लिखना है। मैं सी डिस्कस कर रही हूँ। इट इज एन एसिड यूज्ड एज एन फूड प्रिजर्वेटिव इज योर विनेगर, राइट। और यू कैन से एसिड पूछा है ना, तो यहाँ पे लिख दो एसिटिक एसिड, या फिर आप विनेगर भी लिख सकते हो। एसिड का कॉमन नाम पूछेगा तो कॉमन में विनेगर है, नहीं पूछेगा तो सीधा आप लिख दो एसिटिक एसिड इज यूज फॉर प्रिजर्वेटिंग द फूड प्रिजर्वेटिव। ये अचार बनाने के लिए भी होता है ना, अचार की प्रिजर्वेशन में भी काम आता है एसिटिक एसिड, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस है विच टेल्स अबाउट कि ये सब्सटेंस मेरा एसिडिक है कि बेसिक है। अगर मैं आपको मान लो कोई एक कलरलेस लिक्विड दे दूं तो मैं कहूँ ये एसिड है बेस है, आप पियोगे तो नहीं कलरलेस को, जहर भी तो हो सकता है। तो बेटा मैं इंडिकेटर्स यूज करूंगी, वेदर इट इज एन एसिड, वेदर इट इज एन बेस, वेदर इट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, राइट। सो इंडिकेटर्स भी बेटा बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ऑलिफैक्टरी होते हैं, सिंथेटिक होते हैं और मैनमेड होते हैं। सिंथेटिक एंड मैनमेड आपको पता ही है, ऑलिफैक्टरी मैं आपको बता देती हूँ। ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स है विच आर बेसिकली स्मेल वाले इंडिकेटर। जैसे मैं बात करती हूँ यहाँ पे ओनियन, वनीला, क्लोव ऑयल, ये सारे के सारे क्या है, स्मेल वाले इंडिकेटर है, जो कि एसिड में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट बेसिस में इसका क्या फर्क पड़ता है कि बेसिस में इनका जो स्मेल है वो डिसअपियर हो जाती है, दैट इज द ऑलफैक्टरी इंडिकेटर। अगर मैं बात करूं वनीला की या फिर ओनियन की, तो एसिड में इसका कोई फर्क नहीं है, बट बेसिस में वनीला और ओनियन की स्मेल गायब हो जाती है, और यू कैन से द स्मेल ऑफ द वनीला एंड द ओनियन इज डिसअपियर, राइट। Natural and synthetic I have discussed already with you guys in the my slides, previous slides. You just read out through this thing and go through this thing and you will get the points, right? Synthetic indicator also I have discussed. pH is also neutralization of the salt I am discussing again to for your better understanding. न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को न्यूट्रलाइज करना। अब एसिड भी इतना, मतलब मान लो कि पॉजिटिव को, मैथ्स में क्या होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव कैंसिल आउट करके जीरो कर देता है, कभी कभी हमेशा ये होता है कि पॉजिटिव को नेगेटिव काटेगा और न्यूट्रलाइज कर देगा। अब यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है बेटा
कि एसिड केमिस्ट्री में पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं, अब एसिड क्या करेगा बेस को, एसिड का जस्ट अपोजिट बेस है, तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके इफेक्ट्स को, एक दूसरे को इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एसिड रिएक्ट हो रहा है बेस के साथ में, तो क्या बना रहा है बेटा, सॉल्ट, एंड पानी बना रहा है, और यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, राइट। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म द सोडियम क्लोराइड एंड द वाटर। एंड अगर आप वो बीकर जहां पे ये रिएक्शन हो रही है उस बीकर को अगर आप हाथ लगाओगे बेटा, तो वो बेसिकली गरम गरम हो जाएगा। बट आप इसमें एक्टिविटी अपने घर में क्या कर सकते हो, विनेगर तो सबके घर में प्रेजेंट होता है, और NaOH में भी सोप आपके घर में प्रेजेंट होगा, सोप सोल्यूशन बना लो, उसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड करके देख लो, एंड टच द ग्लास, इट विल बी लाइट, बिकॉज देखो NaOH तो स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, बट विनेगर वीक एसिड है, तो स्लाइटली आपको बीकर जो है या फिर ग्लास जो है वो गरम गरम फील होगा, दैट इज हीट रिलीज होगी उस रिएक्शन में से, है ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बना है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन इज नोन एज द कैटायन एंड द नेगेटिव आयन इज नोन एज द अनायन। अब देखते हैं यहाँ पे कैसा है, मतलब देखो H पॉजिटिव की बात करते हैं, Cl नेगेटिव की बात करते हैं, प्लस में Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन आपको यहाँ पे कर दे रही हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म्स में। पॉजिटिव इज द कैटायन, नेगेटिव इज द अनायन। अब H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ मिलके क्या बना देगा बेटा, पानी बना देगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव मिलके बेटा NaCl बना देगा। Cl Na नहीं लिख सकते हैं, पहला सब्सटेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, दूसरा हमेशा नेगेटिव होगा। Okay, next is the example over here is the hydrochloric acid react with the metal will form a magnesium chloride का salt बना देगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी बेटा, राइट। नाउ नेमिंग ऑफ द सॉल्ट अगर मुझे करना है तो कैटायन और अनायन, पहला कैटायन होता है दूसरा अनायन होता है। मैंने पहले ही कहा है कि पहला जो सब्सटेंस आएगा वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। पोटेशियम नाइट्रेट इज द सॉल्ट, दिस इज सोडियम प्लस सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम एंड सल्फेट, अमोनियम सल्फेट इज योर सॉल्ट्स, राइट। कैटायन पकड़ो अनायन पकड़ो, दोनों को मिलाओगे यू विल गेट द सॉल्ट का नाम, right। Properties of the salt, they are colored, they can be colorless also, ठीक है, कलर भी हो सकते हैं कलरलेस भी हो सकते हैं। अभी कलर और कलरलेस अभी आपको थोड़ी देर में पिक्चर्स में दिखा दूंगी। मोस्ट सॉल्ट्स हैव द हाई टेम्परेचर एंड हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट, दे आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इन लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। they are soluble in water, mostly soluble होते ही होते हैं। salts conduct electricity in molten as well as in aqueous solution, right। aqueous solution और molten solution में ही salts electricity conduct करते हैं। like आपका जो नमक का डब्बा है उसमें जो नमक पड़ा हुआ है बेटा वो electricity conduct नहीं करता है, but अगर वो नमक में आप थोड़ा सा भी पानी डाल दो ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा जो नमक है, राइट। तो सॉल्ट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन एंड द एक्वस स्टेट। मोल्टन एंड एक्वस स्टेट में क्या चीज फ्री हो जाती है बेटा, इनके आयंस फ्री हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, जिसके कारण की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो अच्छे से देखें और सुने। बात करते हैं यूजेस ऑफ द सॉल्ट। अब मैंने कहा था कि कुछ सॉल्ट्स कलर्ड होते हैं कुछ कलरलेस होते हैं। यहाँ पे अगर कॉपर सल्फेट की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, कलर्ड होता है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल ब्लू इन कलर। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट एक कलरलेस लिक्विड कलरलेस सॉलिड्स है, ये कलरलेस है। कॉपर सल्फेट कलर्ड है, मैंने आपको कलर शो किया हुआ है। इनके यूजेस की बात करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है मैं आपके साथ लिख देती हूँ, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। NaHCO3 इज द बाइकार्बोनेट। ये कहाँ पे यूज होता है बेटा, बेकिंग सोडा, दिस इज ऑल्सो नोन एज द बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा कहाँ पे यूज होता है, बेकरी में यूज होता है, पेस्ट्रीज में यूज होता है, ब्रेड्स बनाने में यूज होता है, और न्यूट्रलाइजेस द एंट स्टिंग, मतलब अगर चींटी या फिर कोई भी मधुमक्खी काट ले तो उसके लिए भी ये बेस है।
ये है तो सॉल्ट बट इसमें बेसिक करेक्टर थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, सो इट इज एन यूज फॉर एंट स्टिंग के लिए यूज कर लेते हैं। बेकिंग का सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो यूज्ड एज एरेटिक ड्रिंक्स, ड्रिंक्स में भी यूज होता है बिकॉज इसमें इनो टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है बेटा, फटाक से गैस निकालेगा तुम्हारी एसिडिटी गायब हो जाएगी। इट इज यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ द मेनी मेडिसिन एंड फायर एक्सटिंग्विशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम आता है। सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, इट इज एन गुड प्रिजर्वेटिव एंड यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पिकल्स, पिकल बनाने में भी काम आता है। व्हेन एडेड टू द आइस इट फॉर्म्स अ फ्रीजिंग मिक्सचर, इट फाइंड्स अ वाइड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द पल्प एंड द पेपर, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा काम है, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी है, दैट इज बेसिकली द क्लीनिंग इंडस्ट्री, राइट। लॉन्ड्रीज में आप कह सकते हो। सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Na2CO3, राइट। इसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, राइट, बिकॉज डिटर्जेंट्स में भी यूज होता है, लॉन्ड्रीज में भी होता है, और हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी होता है, राइट। अब कॉपर सल्फेट की बात करते हैं। कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज एन फंगीसाइड, चूहे मारने की दवाई जो होती है ना उसमें भी कॉपर सल्फेट डाला जाता है बेटा। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द डाइंग इंडस्ट्री सच एज वुड प्रिजर्व एंड एज अ वुड प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है। ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इन आवर डेली लाइफ, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द स्लाइड्स वेरी ब्यूटिफुली, यू गाइस कैन read from there or take the notes from there or you can read from your textbook, you will understand the thing। एक टू डीके का यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी, आई थिंक वो उसमें कवर अप नहीं हुआ है बेटा, तो मैं इसे यहाँ पे कवर अप कर देती हूँ, राइट। टूथ डीके की बात करते हैं। वाइल अब देखो हमें सुबह सुबह बोलना जाता है, मम्मी पापा बोलते हैं ब्रश कर लो नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे। दांत क्यों खराब हो जाएंगे, हमने कुछ किया थोड़ा है भाई, हमने एसिड वैसिड तो पिया नहीं है जो हमारे दांत खराब हो जाएंगे। तो होता क्या है, व्हेन यू ईट द फूड, नाइट में जब हम लोग खाना खाते हैं या डिनर करते हैं तो डिनर के बाद क्या होता है, some of the food particle will stick on your mouth within the gaps of your teeth, and what will happen, the decay of that particular food is take place in our mouth, right। अब वो decay जब होता है ना, it will produce acid, that acid is basically decay your tooth। तो उसके लिए बोला जाता है कि वो जो फूड पार्टिकल्स अटका हुआ है, जो भी एसिड सॉरी जो भी एसिड बन रहा है उसे न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। तो टूथपेस्ट एक ऐसा बेस है जिसकी हेल्प से हम लोग वो चीजें रिमूव कर सकते हैं या फिर जो भी एसिड बन रहा है उसे रिमूव करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, सो दैट कि हम लोग टूथ डीके से बच सके, राइट। नाउ गाइस थैंक यू सो मच, ओके।